Hello, dear students. Today, I'm going to start a new chapter in Organization of Commerce and Management, Standard 12th Commerce. Chapter number 4, Organizing. I already completed and also we discuss in detail in the different sessions. Chapter number 3, that is the first and main function of the management planning. क्या प्लानिंग में हमने देखा इन डिटेल characteristics, importance, how it is important to the management, right? Also some of the limitations, as you know that one कि every coin has two sides. मैं कई बार अपने लेक्चर में भी बोलता हूँ. So उसकी limitations है, लेकिन उसको इग्नोर करने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है. No alternatives of the planning. Then after we discuss process that is related to planning, then after types, and lastly we discuss that different type of the elements, right? 7 elements we discussed. So that was the first function, but with the help of the first function the other functions are connected. यानी प्लानिंग के साथ ही दूसरे फंक्शंस को हमें लेना पड़ेगा. इफ प्लानिंग इज गुड देन अदर फंक्शंस विल फॉलो. यानी प्लानिंग से स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का काम, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम अदर फंक्शंस करते हैं. हाउ? लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूप्रिंट और marks of this chapter. Total marks of the chapter number 4 is 10. Mostly section A, B, C, D. यानी 1, 1, 2, 3, 3. Sometimes it happens के ए बी और ए बी सी में कुछ प्लस माइनस रहता है, लेकिन डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर पेपर सेट है. लेकिन अभी के लिए हमें याद रखना है कि सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में मोस्टली 2 क्वेश्चन आते हैं. यानी 6 मार्क तो सेक्शन डी के ही हो जाएंगे. ओके, बाकी के जो 4 मार्क्स है वो सेक्शन सी एंड ए बी में डिवाइड हो जाते हैं. समटाइम्स सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चन, डिपेंड. मैंने बोला इस तरह. यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स है, 1 बाय 1 जैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको समझाऊंगा. इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके स्टेप्स है. यहाँ पर स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. उसका स्ट्रक्चर है और वो 5 अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ है. उसके बाद हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, concept related that one, and lastly the delegation of authority with the elements, right? ये सिर्फ एक particularly आपको मैंने information दे दी. Now let's start. What is the organizing? The goal of the organization is set by planning. कई बार आपको ऐसा लगता हो, वीडियो देखोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि why sir is going through line by line. ओके हम भी कर सकते हैं, हम भी ओरली पढ़ा सकते हैं विदाउट बुक, ऐसा कुछ है नहीं, राइट? कई बार कई स्टूडेंट्स को ऐसा इश्यू होता है कि सर वाई पर्टिकुलरली यूजिंग द पर्टिकुलर बुक. सी, टीचर्स आर ऑलवेज गिविंग द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. विदाउट बुक भी हो सकता है, विद द बुक भी हो सकता है, लेकिन बुक के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसलिए किया जाता है. और मेरी तरफ से मेरी बात करता हूँ, वाई आई एम टेकिंग all the particular information which is there in the book, because 1 mark question, dear students, section A અને B. સેક્શન એ અને બી માટે જ તમને હું આ મહેનત કરાવું છું. યાદ રાખજો, CDE યુ કેન ઇઝીલી, એ તમે 11થમાં કરી ગયા છો, આઈ નો યુ કેન એબલ ટુ ડુ, રાઈટ? અને હું આપણા પર્ટિક્યુલરલી આપણી સ્કૂલની વાત કરી રહ્યો છું. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ પર્ટિક્યુલર અવર સ્કૂલ, રાઈટ? કે વાય વી આર ડુઈંગ સો. ધ રીઝન ઇઝ સિમ્પલ. Okay, like keep in mind, don't give any type of the things in your mind that why sir is going through the book line by line. Okay, हाँ reason मैं તમને આપ્યું. બાકી you can utilize different type of the things are available. Okay, પણ મારે એવું નથી કરાવું, that's why. Okay, let's start. The goal of the organization is set by planning. So when you want to do any work, it is already set. તમારે કંઈ કામ કરવું છે, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી સેટ બાય ધી પ્લાનિંગ. પ્લાનિંગ हैज़ ऑलरेडी डन द वर्क ऑफ द ऑब्जेक्टिव और गोल्स, यानी टारगेट्स, वो कर दिया है प्लानिंग ने. नाउ द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लानिंग but also on the effective implementation of planning. Whatever planning or whatever the things or objectives are there in the planning, you decide, management decide, top level decide, but through that one success will not be there. अगर आपने गोल कर दिया कि 1000 यूनिट को हमें प्रोड्यूस करना है, हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, हमें एक 1000 या 1000 करोड़ का हमें बेनिफिट करना है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना है, वॉट एवर योर गोल्स आर देयर, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए यू हैव टू फॉलो द अदर फंक्शंस टू. तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस में डालना पड़ता है, राइट? विचारूँ तो હું છું કે હું પણ અંબાણી બની જાઉં, રાઈટ? બટ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ના, રાઈટ? आई हैव टू वर्क
ટુ બીકમ અંબાણી, ટુ બીકમ ધ પર્સન, રાઈટ. આ લેવલ ઉપર બધા નામ આપવા જરૂરી નથી, પણ હા આ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો maybe implementation or through the practice planning is maybe effective. For one mark याद रखो, effective implementation of planning, it is totally based on the management's work. The formal administrative structure that is formed to enable effective implementation of planning, that is called organizing. Very simple, make it underline from this line to here, underline कर दीजिए. તમને ખબર પડી જશે in simple words what is organizing. So that is formal administrative structure. एक formal, simple. Everybody, those who are working in that field or those who are maybe outsiders, they can easily understand that from this particular structure, the goals of the particular company will be fulfilled. That is organization. Okay, so simple formal administrative structure that is formed, એક એવું બનાવીએ છીએ આપણે form to enable effective implementation of the planning. So whatever planning is done, planning में તમે जे पण કર્યું છે, आपने जो भी किया है planning में, उसको particularly एक structure में आपको डालना है. Then and then your goals will be achieved. तभी आपके goals achieve होंगे. That is called organizing. यानी whatever you decide, you have to put into one formal administrative structure. ये formal administrative structure क्या होता है? जो सीधी तरीके से आप देख सको, सीधी तरीके से आपको मालूम पड़े कि ऐसा काम हो रहा है. एक સિમ્પલ सा સ્ટ્રક્ચર, માળખું જેને કહીએ છીએ આપણે, રાઈટ. તમને દેખાતું હોય કે રાઈટ એક સરસ મજાની ડાળી છે, એમાં તમને દેખાતું હોય કે દરેક ડાળી ઉપર એક 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 કેરી છે. ત્યારે કેરીની સિઝન છે, આપણે એક્ઝામ્પલ આપી શકીએ. તો જે માળખું છે એ કેરીનું જ છે, રાઈટ. એ તમને દેખાઈ રહ્યું છે. તો પર્ટિક્યુલર વર્ક શું છે, એને તોડવાનું, તે કરશે કોણ, રાઈટ. સો વી હેવ ટુ ડુ ધેટ વન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેટ વર્ક અલોટેડ. જે કામ છે એના સોંપવામાં આવશે થશે, પણ એકવાર માળખું તૈયાર થવું જોઈએ, અને કરી દીધું છે ઓલરેડી. So when more than one persons are working towards the achievement of a common goal, the effective organization is essential. Very good and best statement. When more than one person, एक से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा होते हैं कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, here the common goal is to earn the profit. तो if you want to achieve that one, effective organization is required. यानी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा प्रॉपरली होना चाहिए. इट मस्ट बी इन द सेंस ऑफ, और इट्स इफेक्टिवनेस मस्ट बी हाई. वो टाइम टू टाइम होना चाहिए. अगर 5 बंदे इकट्ठे होते हैं कोई एक काम करने के लिए, तो उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए. एक बंदे ने प्लानिंग कर लिया, दैट इज गुड, लेकिन बाकी के चारों को उसको इम्प्लीमेंटेशन में डालना पड़ेगा, तभी उसका और उनका गोल फुलफिल होगा. यानी मैक्सिमम and maximum persons work behind that one, human resource work behind that one, and they will achieve the goal with the effective organization. It is very important, it is essential. The success and goal achievement of any unit or work, that is depends on proper division of work, distribution of authority and responsibility, delegation of authority among the employees. ये भी सेंटेंस याद रखना from here. Whatever the particularly success और a specific business जो है, यूनिट जो है, उनका जो सक्सेस है, उनका जो गोल अचीवमेंट है, कोई भी एक यूनिट का हो, कोई एक काम हो, कोई एक टास्क हो, राइट, वो टोटली किसी एक आदमी पर डिपेंड नहीं है. वो डिपेंड है कोई प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर. और डिवीजन ऑफ वर्क क्या है हमने देख लिया चैप्टर 2 में. स्पेशलाइजेशन क्या है हमने देख लिया. तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. The person who is able to do the work, the person who is more eligible, give the work to him or her, then she or he will complete the work, right. Distribution of authority and responsibility, ये भी हमने देखा है. So don't give more authority, don't give more responsibility, it should be in balance, वो भी देखा है. Also delegation of authority, sometimes authority and responsibility as balance, but sometimes of a person don't have any authority, he is working only without authority. that means वो काम कर रहा है, उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले, तो उस टाइम पर थोड़ी अथॉरिटी उसको दो. तो when and when this all 3 points are there, right, a proper and a goal related achievement will be there, success will be there. So the objectives which are determined at the time of formation of organizing process are methodically applied
एंड फॉर द सेम, जो भी आपने दिया है मैथोमेटिकल लीजिए, जो मैथमेटिक्स के बेस पर और मेथड के हाथ उसके ऊपर, यहाँ मैथमेटिक्स में वर्ड इसलिए यूज़ करना चाहूँगा कि थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, और मेथड्स हमने देख लिया कि मेथड्स कैसे फॉलो करनी है, दैट इज़ इन द सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लानिंग मेथड्स, वो लास्ट में हमने उसके जो एलिमेंट्स थे कि उसमें देखा था। तो आर मैथोडिकली अप्लाइड एंड देन आफ्टर फॉर द सेम वॉट एवर द एप्लीकेशन इज डन, ऑर्गेनाइजिंग इज इनेविटेबल, वो अनिवार्य हो जाता है। यानी जब जब आप कोई ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करते हो प्लानिंग लेवल पर, है, तो उसको जब ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है, वो करना ही है, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का फॉर्मेशन जब होगा तभी आपको उसे फॉलो करवाना पड़ेगा, और वो जब आप फॉलो कराओ, अप्लाई कराओ, इट शुड बी इन अ प्रॉपर मेथड, देन एंड देन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इनएविटेबल। वहाँ आपको ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजिंग है, वो जरूर पड़ेगा। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है, लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, और वो क्यों करेगा, तो उसके लिए आपको उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, सैलरी। एग्जैक्टली आपके माइंड में आएगा क्यों करेगा, तो उसको जॉब मिली है। अच्छा, कैसे करेगा, तो उसके पास उसकी स्किल है, डिवीजन ऑफ वर्क किया है हमने, तो और अदर थिंग, वो ग्रुप में अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, तो ये सब मिला के एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, और वो इनएविटेबल है, वो अनिवार्य, वो जरूरी है। So we can say it is said that management is the brain of business enterprise, right? तो मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ ब्रेन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। हमारा जो मैनेजमेंट है वो टोटली ब्रेन है, लेकिन प्लानिंग जो है वो हमारा सोल है। याद रखना ये सेंटेंस, मैनेजमेंट खुद एक ब्रेन है, जो प्लानिंग किया हमने थर्ड चैप्टर में, जो थर्ड पॉइंट देखा हमने, दैट इज सोल। वेयर एज इन फोर्थ चैप्टर अगर हम आगे जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो बॉडी है। तो ये 1 मार्क के लिए याद रखना, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है चैप्टर फर्स्ट में, जब सेपरेटली हमने जो फंक्शंस का डिटेल लिया था तब, और मैंने बोला था कि उसके सेपरेट चैप्टर आएंगे तब हम डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। तो हियर मैनेजमेंट इज ब्रेन, प्लानिंग इज सोल, वो आत्मा है। रूह के बिना शरीर कुछ काम का नहीं है, तो शरीर भी है ना, यस, ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी। तो उसका एक सिनोनिम वर्ड, सिनोनिम तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कॉमर्स में उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, दैट इज फिजिकल स्ट्रक्चर। एमसीक्यू उसमें पूछा जाता है, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स बॉडी। आप बोलोगे फिजिकल स्ट्रक्चर है ही नहीं, हाँ, तो भी पूछा जाता है, वो याद रखना, राइट। तो ये तीनों के तीनों मिला के आपको याद रहना चाहिए। प्लानिंग करना पड़ेगा, वो सोल करेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, वो बॉडी करेगी, लेकिन इन सब के लिए एक ब्रेन चाहिएगा, वो मैनेजमेंट बैठा है। दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द मीनिंग हियर। मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, ये जनरल वर्ड्स कॉमन। अब देखो यहाँ पर मीनिंग है, डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन आपको दिया गया है, तो कीप इन माइंड व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, 3 मार्क में आता है ना, तो डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं पूछेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर द ऑर्गेनाइजिंग, राइट। वो 1 मार्क में आएगा व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, 2 मार्क में आएगा कि स्टेट आउट और लिस्ट आउट और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। तो ये सब ध्यान रखो, अगर 5 मार्क में भी आ गया, ब्लूप्रिंट अगर चेंज हो जाए तो भी हमें चिंता नहीं है, दिक्कत नहीं है, वी कैन राइट आउट, लेकिन मीनिंग सबका याद होना चाहिए, पूछे ना पूछे कोई, उसके ऊपर ही पूरा काम डिपेंड है। तो ये है मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन, जनरली हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अनेबल अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी हम एक ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं और किया हुआ है हमने, इट्स फॉर्म टू अनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी जो है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसे किसी को देना है। अब डायरेक्टली प्लानिंग करके किसी को दे तो नहीं सकते ना, उसके लिए कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर इज फॉर्म टू अनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल, बिकॉज बंदे ही काम करेंगे ना, टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज्ड फॉर द कॉमन गोल, those who are working for the common goal, actively working for the common goal, that is called organizing। अंडरलाइन करके रखना और इसको याद रखना। once again I am repeating the thing, whenever the one structure is formed or formed, right, to enable or to give authority and responsibility to someone, someone कौन होता है, the people, those who are working actively in the one business units and the main thing for the common goal। यानी हम कह सकते हैं कि कोई एक ग्रुप कोई कॉमन गोल को फुलफिल करने के लिए काम करता है, और उसके लिए कोई उसको अथॉरिटी या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यानी हमारा काम हमें करना है, वी नो,
हम कर रहे हैं बिकॉज हमें सैलरी मिल रही है, दैट इज़ गुड। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, दैट इज़ गुड। हमें अथॉरिटी दी गई है कि बच्चों को आप हैंडल करो, राइट, हम कर रहे हैं, तो दैट इज़ द थिंग, ये काम सौंपा गया है। लेकिन इसके लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है ना, अकेले हम तो है नहीं, मेरे पास ये पर्टिकुलरली स्केल पड़ा है, इस स्केल को हर रोज़ के 10 स्केल को हमें प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए लोअर लेवल काम करेगा, मिडिल लेवल तो सिर्फ उसको गाइड करेगा, सुपरवाइजर उसको सुपरवाइज करेगा। तो सबका काम दिया हुआ है, वो लोग उसका काम कर रहे हैं और करेंगे 101%। तो सबको काम दिया गया है, उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर से एक बार, કોઈ એક કામ કરવા માટે જ્યારે ગ્રુપ ભેગું થાય છે, રાઈટ, અને કોમન ગોલને અચીવ કરવા માટે એમને ઓથોરિટી મળે છે, right, they got the power and they got the responsibility. Without responsibility power is nothing, and with the power without responsibility it will not work. તો પછી ડિક્ટેટર થઈ જશે. સો આ બંને વસ્તુ જ્યારે ભેગી થાય છે ફોર ધ અચીવમેન્ટ ઓફ ધી કોમન ગોલ, આ બધું જ કામ માટે એક સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરે છે અને આપણે કહીએ છીએ ઓર્ગેનાઇઝિંગ. લેટ્સ મૂવ ટુ ધી ડેફિનેશન. Here it is. Two names are here. First of all, Chester I. Bernard. As per Bernard. अब ये जब भी आप डेफिनेशन लिखो, कीप इन माइंड द नेम, ओके। अगर पूरा नाम याद ना रहे तो फिर पूरा नाम लिखने की कोशिश मत करो। अदरवाइज चेस्टर की जगह चेल्सी हो गया, चेल्सा हो गया, यार बर्नार्ड की जगह कुछ और लिख दिया तो वो पूरा डेफिनेशन अंदर से भले ही सही होगा लेकिन इसका मार्क शायद ना मिले। मैं ऐसा नहीं कहता नहीं देंगे, पूरा पढ़ के ही चेकिंग होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको यही नहीं मालूम कि डेफिनेशन किसने दी। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको नाम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि राइट डाउन द डेफिनेशन गिवन बाय दी चेस्टर आई बर्नार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजिंग। तो उस टाइम पे आपका काम आसान हो जाता है, तो आपको डेफिनेशन याद रखनी होती है, तो ये सब ध्यान रखो। तो एज पर बर्नार्ड, कुछ भी याद ना रहे तो बर्नार्ड याद रखो। द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ 2 और मोर पीपल। यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन अलग है लेकिन कनेक्टेड टू द मीनिंग ही है कि जहाँ पर एक्टिविटी एक की जाती है कोऑपरेटिवली, 2 और 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एंड ऑल्सो विदाउट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इज नथिंग, विदाउट कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इज नथिंग। तो सिंपल, देयर कोऑर्डिनेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। वेरी सिंपल डेफिनेशन बाय द बर्नार्ड कि जहाँ पर एक एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कब चाहिएगा? जब 2 से ज़्यादा लोग काम करेंगे तभी। अगर 2 ही लोग काम करते तो अंदर अंदर बातचीत कर कोऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा हो गए, दे हैव टू शेयर देयर थॉट्स, देयर वर्क, राइट, ऑल्सो द आइडियाज, दैट टाइम कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन ये एक एक्टिविटी के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एज पर लुई एलन, ये भी सही है, थोड़ी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, वंस अगेन इट्स द प्रोसेस, लाइक प्लानिंग अ प्रोसेस, हियर ऑल्सो द प्रोसेस। तो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। अब प्रोसेस है तो सिंपल तरीके से ख़त्म नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हमको टाइम ही चाहिए ना, 1 साल से ज़्यादा के लिए हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। 1 साल के लिए प्लानिंग करते हो तो शॉर्ट टर्म बोलते हैं, वो शॉर्ट टर्म गेन होता है, शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन होती है, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से करना पड़े, ऐसा ना हो। यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब के जाए तो एक प्रोसेस लंबा होता है। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म। जो भी काम परफॉर्म करना है, जो भी काम आप कर रहे हो, पास्ट में आपने किया है, तो अभी फ्यूचर में उसको कुछ नया करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम, वो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको उसके हिसाब से क्लासीफाई करो। अब अकाउंट में आप सब कुछ सीख चुके हो कि हाउ द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड, उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर जो काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, को वो आइडेंटिफाई करो, उसको क्लासीफाई करो। और क्लासिफिकेशन कैसे होगा? क्लासीफाई द वर्क टू बी परफॉर्म, जो करना है वही। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस, इफ यू वांट टू सेल, इफ यू वांट टू इन द फील्ड ऑफ द ट्रेडिंग, if you are in the field of the service provider, try to identify and classify the work. Then after defining and deciding, sorry, delegating, defining and delegating, यानी पहले तो काम डिफाइन करो कौन सा है, उसके बाद टू गिव, डेलीगेट और असाइन करो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कैसा काम कैसे करेगा, वो आपका वर्क है डेलीगेशन के अंदर। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्लासरूम में भी कहा है, सेशन में भी कहा है, डेलीगेशन मीन्स टू गिव, टू असाइन, काम देना, पावर देना। यानी डेलीगेटिंग
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। तो जो काम करना चाहते हो उसको पहले आइडेंटिफाई करो, उसको क्लासीफाई करो, उसके बाद उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसको डेलीगेट करो, एंड देन आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप, फिर एक मजबूत रिलेशनशिप क्रिएट करो फॉर द पर्पज ऑफ अनेबलिंग पीपल टू वर्क। उनको काम करने के लिए एक रिलेशन क्रिएट करो। अब पैसा दोगे तो कोई भी बंदा काम करने ही वाला है, बिकॉज ही हैज़ दैट टाइप ऑफ द गट्स, बिकॉज ही हैज़ दैट टाइप ऑफ द स्किल, तो करने ही वाला है। लेकिन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स फॉर द पर्पज ऑफ अनेबल पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली, हर कोई काम करने की इच्छा रखता है, लेकिन इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो नॉट ओनली द सिंगल पर्सन बट इन द ग्रुप, सो टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टूगेदर इन द अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए आपको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम जो है उसको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद किसी को दिया जाएगा और आपके कॉमन गोल अचीव हो जाएंगे। दैट इज द थिंग। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेफिनेशन. सो वी डिस्कस इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, टू डेफिनेशंस एक्चुअली, बर्नार्ड एंड एलन. फिर से बोलता हूँ, नाम में कोई गलती मत करना. अगर आपको एक मार्क के लिए पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन आप लिख रहे हो. चलो ये डेफिनेशन एक मार्क की नहीं है, मालूम पड़ ही जाता है ना, तो फिर लुक आफ्टर दैट वन विच इज़ 1 मार्क. तो ऐसे तैयारी करो कि आपको मालूम पड़े कि 1 मार्क में आ सकता है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन which I want to give for the particular organizing on the basis of introductory part. Now let's move to the concept. अब जब भी एग्जामिनेशन में आपको बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऐसा नहीं आता है, लेकिन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऐसा कहा जाता है. तो उस टाइम पे डेफिनेशन या मीनिंग लिखो, या ये छोटा वाला डेफिनेशन लिखो, राइट, या ये ऊपर वाला जो मीनिंग है वो लिखो, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट चालू करो. कॉन्सेप्ट यानी उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहना चाहते हैं, संकल्पना के तौर पर हमें उसको देखते हैं. सो ये क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी. इट इज़ इनएविटेबल टू हैव एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस. यानी वो जरूरी है, वो अनिवार्य है कि एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. एफिशिएंट, कार्यक्षम, कैपेसिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. किसके लिए? टू गेट द वर्क फ्रॉम द अदर पीपल. यानी एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको, मैनेजमेंट करना है, वो प्रोसेस के लिए आपके पास एक मजबूत, हम बोले तो कैपेसिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. अगर अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है तो आप अच्छी प्रोडक्ट कैसे दोगे? अच्छे टीचर्स नहीं है तो आप अच्छा एजुकेशन कैसे दोगे? मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट. ये कॉमनली जा रहा है, सब स्कूल के लिए जा रहा है, लेकिन सिंपल थिंग है ना. अगर आई वॉन्ट टू स्टार्ट वन स्कूल, आई विल हायर और आई विल टेक दैट टाइप ऑफ द टीचर्स, वन दोज हु आर एफिशिएंट. सिंपल. कई लोग ऐसे होते हैं, दे आर रेडी टू द वर्क बट दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क, सो वो नहीं चलता है. तो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, अब कंपनी पर चले जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए. अच्छा मैनेजमेंट तभी चलता है जब उसका स्टाफ सही मायने में सही काम कर रहा हो, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है. सही बंदे को सही काम मिलना चाहिए. मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट अराइजेस ड्यू टू इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन द मैनेजमेंट. वाई द प्रॉब्लम्स आर अराइजेस? प्रॉब्लम मैनेजमेंट में अराइज क्यों होते हैं? 2-3 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे काम करते हैं, उससे ज़्यादा कोई मैनेजमेंट में होता नहीं, फिर भी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट में अराइज होते हैं. द रीज़न इज देयर इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. यानी इफेक्टिवनेस है, दैट्स वाई दे आर मैनेजमेंट ना, बट थोड़ा जो उसका मैनेजमेंट के लिए जो भी वर्क होता है वो थोड़ा इनइफेक्टिव मैनर में जाता है. कई बार पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, राइट, उसके हिसाब से आपको किसी को हायर करना पड़ता है, किसी को जॉब पर रखना पड़ता है, उसके लिए वो बंदा काम नहीं करता है, वो बंदी काम नहीं करती है, तो फिर आपको एज अ मैनेजमेंट कमेटी का शायद आपको वो सुनना पड़े. तो कई बार ऐसा होता है, कई बार वर्क कंप्लीट होने को आता है और द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क, लास्ट में ऐसा हो जाता है. सो इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्यों होता है, ये कॉमन रीज़न नहीं है, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी. लेकिन प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं मैनेजमेंट में वो मोस्टली होते हैं इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. अंडरलाइन करके रखना, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन रीजन इन द प्रॉब्लम, और व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, right, in the sense of organizing ineffective organization. Hence we can say the business unit could not achieve its goal in a specific time.
सो इफ द बिजनेस यूनिट्स हैज कैपेबल एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, यानी कोई भी एक यूनिट है, छोटा बड़ा कोई भी आप देख लो, बिजनेस यूनिट काम करता है, दे विल नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स राइट ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, यानी जो भी टाइम है 1 महीना 2 महीना 3 महीने में आपको टास्क खत्म करके आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करवाना है राइट, तो वो हो सकता है, लेकिन कब, अगर मैनेजमेंट सही मायने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है तो, अगर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है तो, अगर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दे विल नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी बिजनेस यूनिट हैज कैपेबल एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, इसको कंटिन्यू रखते हैं कि जब भी आपका बिजनेस यूनिट जो है वो कैपेबल है, मैंने यहाँ इनइफेक्टिव बोला, इनकैपेबल बोला, लेकिन यहाँ अगर वो कैपेबल है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो करता है, इफेक्टिव वर्क वो करता है, तो उस टाइम पर क्या है राइट। So then through the optimum use of resources, time, energy and money can be saved, and also problems in the activities of business can be avoided. So जब भी हम कुछ भी बात करते हैं right, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे सामने क्वेश्चन आके खड़ा जाता है कि who will do the work, how he will complete the work, how she will complete the work, she is able to complete the work, he is able to complete the work, ये सब का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन सिंपल, if the business unit is capable, effective organizing is there, then you can optimally use your resources, you can utilize time, energy and money, है सब कुछ है आपके पास, लेकिन उसको through the capable, through the effective organization जाना चाहिए, then and then everything will be saved, ये सब कुछ बच सकता है अगर कैपेबिलिटी है, and problems in the different activities or task maybe a business can be avoided. So we can say 1 or 2 mark question, how the problems are avoided through the organizing, ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं मिलेगा रेफरेंस में डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ सेशंस को लो, सेशंस में आओ, पूरे के पूरे जो भी हमारे वीडियो से वो देखो, लेकिन नहीं ओके, नो एनी कॉमेंट, नो एनी लाइक्स, नथिंग, कुछ नहीं देना है आपको राइट, यू वांट टू जस्ट एंजॉय राइट द सेशंस एंड टेक रेस्ट, नो दैट इज नॉट गुड, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आपको सीरियसली ये लेना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बारी बारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द व्यूज़, कोई देखता ही नहीं है, हम ज़्यादा देखें ऐसा नहीं, लेकिन हमारे स्टूडेंट तो उसको देखें ना, तो तभी उसका रिजल्ट मिलेगा राइट, सिंपल, डिपेंड अपॉन यू ओके। सो छोटे बहुत क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो यहाँ से भी निकल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजिंग इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी याद रखो, ऑर्गेनाइजिंग कब क्रिएट होता है राइट, ये कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब ग्रुप ऑफ पीपल है, अकेला बंदा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन 2 or more people work together, the structure for the work accomplishment in an effective manner is called organizing। अब ऑलरेडी आप सीख चुके कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, कुछ अचीवमेंट करना है, अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर द कॉमन गोल। तो यहाँ पर वही थिंग्स है कि जब जो 2 से ज़्यादा लोग काम करेंगे, एक स्ट्रक्चर किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द वर्क इन द इफेक्टिव मैनर राइट। अब ये इफेक्टिव मैनर क्या है, तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए और क्रिएट करना चाहिए। सो वी कैन से इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरेंजमेंट। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वी कैन से इट इज अरेंजमेंट। कुछ सामान्य गुजरात में गोठवण करवी पड़शे, गोठवવું પડશે, આપણે એને અરેન્જમેન્ટ કહીએ રાઈટ, મેનેજમેન્ટ ના કહેવાય ઓકે। સો દેટ ઇઝ અરેન્જમેન્ટ। સો કેવી અરેન્જમેન્ટ, સો ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન authority and responsibility both or are delegated to group of people gathered to achieve a common goal। फिर से रिपीट हो रहा है, 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, उनको अथॉरिटी देनी पड़ती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल्स राइट, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने जा रहा है, एंड इंटर रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिशिंग। अब अगर इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा तो हाउ दे विल कंप्लीट द वर्क, हाउ दे विल फुलफिल द वर्क। सो इंटर रिलेशनशिप्स इज एस्टैब्लिश अमॉन्ग देम, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। यू आर द पर्सन हु विल एबल टू कंप्लीट द वर्क, उसको ऐसा कुछ मालूम करवाना पड़ता है राइट, ऐसा नहीं है कि उसके सिवा कोई नहीं कर सकता है। कई लोग पड़े हैं दुनिया में राइट, जो काम करने के लिए तैयार है, स्किलफुल है, बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वेजेस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग द वर्क राइट। तो बंदे हैं, तो एक पर्टिकुलरली उनको एस्टेब्लिशमेंट मिलना चाहिए, दैट इज थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग। Now last information in this particular point. For this, the human body is an excellent example.
right? How the organization is or organizing is completely connected with the प्लानिंग विद द मैनेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजिंग विद द अदर. तो उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ह्यूमन बॉडी कि द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट बट स्टिल ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड टू वन अनदर. कोई एक चीज़ अगर बॉडी से दूर हो जाए राइट एक दिन के लिए तो क्या होता है आपको मालूम है. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल. ऑर्गेनाइजिंग इज डायरेक्टली वी कैन कंपेयर इट विद द ह्यूमन बॉडी. हर कोई आदमी हर कोई इंसान हर कोई बंदा अपने हिसाब से स्पेशल है. जैसे हमारे शरीर में जो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स है जो अंग है ह्यूमन बॉडी में राइट उनका काम पार्ट्स है जो अलग अलग काम है वो सबका काम अलग है लेकिन सबकी अहमियत है सबका इम्पोर्टेंस है राइट वो आप नहीं देख सकते हो. वैसे ही इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वैसे इन द फील्ड ऑफ एवरी फील्ड राइट द पर्सन इज इम्पोर्टेंट बट समटाइम्स due to some of the reasons they are ignored right people are not accepting them so उनको फिर काम नहीं मिलता है right so यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अथॉरिटी दो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो they will work they will 101% work right so that is the end of the our first session related to this organizing right keep watching stay safe stay at home you can directly call us you can directly contact us right through the different type of the રાઈટ થિંગ્સ. હવે જરૂરી નથી કે તમે એક જ વારમાં આ બધું જોઈ લો. કદાચ આપણને ઇસ્યુ પણ થતા હોય છે ઘણા નેટ ઇસ્યુઝ હોય છે પણ શાંતિથી જુઓ તો જ ખબર પડશે કે ટીચરે અંદર શું કર્યું છે રાઈટ. સ્ક્રોલ કરીને જવા દેશો તમે નહીં ખબર પડે. ધેટ્સ વાય અમને ખબર પડી જાય તમે ના જોયું એટલે લાઇક ના આવે ને કોમેન્ટ ના આવે. જોયું હોય તો લાઇક ને કોમેન્ટ આવે ને રાઈટ. વસ્તુ ગમતી હોય તો લાઇક કોમેન્ટ આવે ને વસ્તુ ગમતી જ ના હોય તો ક્યાંથી લાઇક અને કોમેન્ટ આવે. અને કેમ ના ગમે બિકોઝ યુ ડિડન્ટ વોચ. You don't have time. You have time to look after the medias which are there in social media. You don't have time to look after this one. इसको देखो राइट. मैं आपको इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ इसको देखो तभी आपका कल्याण होगा. थैंक यू वेरी मच.